दिस वन Jenner diode, ठीक है। Jenner diode works on the principle of junction breakdown. Junction breakdown. अब ये breakdown होता क्या है? Breakdown होता क्या है? The other diode mentioned about the make use of the photosensitive, very important and useful property of the semiconductor. कहने का मतलब क्या है? आप लोगों को पता है कि जब पॉजिटिव टर्मिनल p टाइप से कनेक्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल n टाइप से कनेक्टेड होता है। पॉजिटिव टर्मिनल p टाइप से कनेक्ट होता है एंड नेगेटिव टर्मिनल n टाइप से कनेक्टेड होता है, तो उसको फॉरवर्ड बायस क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस। और आप लोगों को पता है कि फॉरवर्ड बायस में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। बट रिवर्स बायस में क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू पॉजिटिव, राइट? तो रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस में क्या होता है? करंट फ्लो नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता। अब मान लीजिए मैं रिवर्स बायस में करंट फ्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हो जाएगा ब्रेकडाउन। क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन। यानी कि जो पॉसिबल नहीं है उसको मैं जबरदस्ती करने की कोशिश करूंगा तो ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन। तो जेनर डायोड क्या होता है? जेनर डायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड। जेनर डायोड इज द स्पेशल टाइप ऑफ डायोड व्हिच कैन वर्क ऑन द breakdown region also, which can work on the breakdown region also. Are you getting this one, my dear? So यहाँ पे definition क्या दिया है, थोड़ा गौर से देखिए। A Jenner diode works on the principle of junction breakdown. Principle of the breakdown. The other diode mentioned above the make use of photosensitive, a very important and useful property of the semiconductor. Junction breakdown क्या होता है वो भी हम देखेंगे। In the 11th standard we have studied that when the reverse bias voltage of an ordinary junction diode is increased beyond a critical voltage, the reverse current increases sharply to the high value. This critical voltage is called a reverse breakdown voltage. The diode is a damaged at this stage. कहने का मतलब क्या है कि जो रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड बायस में करंट पास होता है, फॉरवर्ड बायस में करंट पास होता है, बट रिवर्स बायस में अगर मैं रिवर्स वोल्टेज बढ़ाऊं तो रिवर्स करंट बढ़ेगा, पीक वैल्यू तक जाएगा। क्या होगा? पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन। तो इसलिए जो जेनर डायोड है, जेनर डायोड इज वर्क ऑन द ब्रेक डाउन रीजन आल्सो इन द रिवर्स बायस, इन अ रिवर्स। आई थिंक आर यू गेट गॉट मैं क्या बोलना चाहता हूँ? समझ में आया? जो बाकी के डायोड फॉरवर्ड बायस में है, लेकिन जो जेनर डायोड है वो जनरली रिवर्स बायस में वर्क करता है। इसमें वर्क करता है रिवर्स बायस में। The diode is damaged at this stage. We will now discuss the what happens when there is a junction breakdown. Electrical breakdown of any material, metal, semiconductor or even an insulator can be due to the avalanche breakdown. उसी को क्या बोलते हैं? Avalanche breakdown। और दूसरा बोलते हैं Jenner breakdown। We will discuss only the Jenner breakdown in this detail. उसको avalanche भी बोलते हैं और Jenner। तो अपने को बोल कर पढ़ना क्या है? Jenner breakdown region। Jenner breakdown region। और Jenner breakdown देखिए गौर से। When the reverse voltage across the p-n junction diode is increased, the electric field across the junction increase. Reverse bias में when the reverse voltage अगर मैं increase करता हूँ, reverse voltage अगर मैं increase करता हूँ, तो increase the electrical field across the junction increases. This result in the force of attraction on the negatively charged electrons. The junction covalent bond which hold the semiconductor together are broken due to this force and electrons are removed from the bond. These free electrons are then available for the electrical conduction and result the increase the electrical field across the junction also increases and more electrons are removed from their covalent bond. Thus the net current is developed which increase the rapidly with the increase in the applied voltage. कहने का मतलब क्या है कि रिवर्स वोल्टेज में जब मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाऊंगा, तो रिवर्स वोल्टेज बढ़ने से क्या होता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है, हाँ कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक। तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कंटिन्यूअसली फ्लो होना स्टार्ट होगा, कंटिन्यूअसली फ्लो होना स्टार्ट होगा। उसीलिए तो बोलते हैं ना कि भाई जेनर डायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द डायोड व्हिच कैन बी वर्क ऑन द ब्रेकडाउन रीजन आल्सो, ब्रेकडाउन रीजन आल्सो। आई
ब्रेक डाउन हुआ तो करंट तो फ्लो होना बंद हो जाना नहीं, क्या होगा जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग क्या होगा, ब्रेक होगा, क्या होगा, एंड मोर इलेक्ट्रॉन विल बी द पास एंड ड्यू टू द पासिंग ऑफ द मोर इलेक्ट्रॉन there is a flow of the electric current, are you getting this one my dear? Okay, which increase the rapidly with the increase in the applied voltage, जैसा जैसा applied voltage बढ़ाएंगे वैसा वैसा करंट बढ़ते जाएगा. Okay, now see Zener breakdown occurs in the diode which are heavily doped. Zener diode is a heavily doped, क्या है, heavily doped. The depletion layer is a narrow in the such diode. Zener breakdown does not result in the damage of a diode, does not result in the damage of the diode. कहने का मतलब क्या है, अगर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक जाऊं, थोड़ा गौर से देखिए, देखिए अगर मैं ब्रेकडाउन रीजन की बात करूं, जैसे यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड है, ओके, पीएन जंक्शन है, ये पी है और ये एन है. मैं इसको पी को निगेटिव से कनेक्ट किया और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया. क्या किया, पॉजिटिव से. पी कनेक्टेड टू निगेटिव, एन कनेक्टेड टू पॉजिटिव. देयर इज अ रिवर्स बायस, ये क्या होगा, रिवर्स बायस. क्या होगा, रिवर्स बायस. रिवर्स बायस होने से ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव, और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव. तो कहने का मतलब क्या है, हेवीली डॉट है. क्या है, हेवीली डॉट. ये पॉजिटिव को निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक. और जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होगा, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या कि उसमें क्या हो रहा है कि जो ब्रेक हो जाएगा. और Zener diode is a PN junction diode designed to work in the breakdown region. It is used as a voltage regulator or a voltage stabilizer. अब Zener diode का यूज का होगा voltage regulator, का होगा voltage regulator and the stabilizer. Shows the circuit symbol of the Zener diode. अब देखिए जिस तरह अपने एक सिंपल जो डायोड होता है, वैसा ही ये भी होता है, सिर्फ यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा. समझ में आएगा. ये जो सिंपल डायोड होता है, सिंपल डायोड कैसा होता है, देखो सिंपल डायोड किस तरह होता है, रियल कारण है. जो सिंपल डायोड है वो किस तरह होगा, राइट. मैंने उल्टा निकाला, कोई बात नहीं, आप ऐसा भी निकाल सकते हो. ये ऐसा होगा, ये हो गया, राइट. यहाँ पे इस तरह फॉर्मेट, ये सिर्फ यहाँ पे अगर मेरे को Zener diode निकालना है तो उसी सिंबल को मेरे को कैसा करना है, ऐसा. समझ में आएगा. तो ये क्या हो जाएगा, Zener diode. क्या होगा, ये क्या होगा, कैथोड. ये क्या होगा, एनोड. क्या होगा, एनोड. डायोड की जैसा है, सिर्फ यहाँ पे ये सिंबल आ गया तो ये क्या हो गया, Zener. क्या हो गया, और समझ में आएगा. ओके, सो सी माय डियर, हो सकता है एक आधे मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाए या एमसीक्यू में आ जाए, या आप भविष्य में कुछ एग्जाम दो तो उसमें पूछ सकते हैं कि सिंबल ऑफ द Zener diode. हाँ, जनरली पूछा नहीं जा सकता, लेकिन पूछते हैं, हो सकता है आपके नॉलेज में होना चाहिए कि ये डायोड और Zener diode के सिंबल में डिफरेंस क्या है. डिफरेंस क्या है, ये ऐसा. समझ में आया. ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये आपको समझना है. यहाँ पे देखिए, आप लोगों को मैंने बोला था कि जो भी सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर में करंट तब तक पास नहीं होता जब तक वो बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस ना कर दे. बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस ना कर दे. तो Zener diode में देखो, अगर मैं फॉरवर्ड बायस की बात करूं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो करंट है, यहाँ से वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट नहीं बढ़ रहा, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है. लेकिन ये 0.3 और 0.7, 0.3 और 0.7 ये क्या है, बैरियर पोटेंशियल. क्या है, बैरियर. और बैरियर पोटेंशियल किसमें होता है, डिप्लेशन लेयर में. और डिप्लेशन लेयर क्या होता है, पी और एन के बीच का जो लेयर है
P और N, P है पॉजिटिव, N है नेगेटिव। पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को खींचेगा, और पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव। तो इधर के होल नेगेटिव की तरफ जाएंगे और इधर के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो उसमें जो लेयर बनेगा, उस लेयर को क्या बोलेंगे हम लोग, डिप्लेशन लेयर। क्या बोलेंगे? और डिप्लेशन लेयर का जो पोटेंशियल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? और जब तक सेमीकंडक्टर बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस नहीं करता तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, माइनॉरिटी होगा, थोड़ा सा होगा। यहाँ पे देखिए, ये करंट है, ये फॉरवर्ड है और रिवर्स। ए आई एफ फॉरवर्ड करंट, आई आर रिवर्स करंट। आई एफ फॉरवर्ड करंट, आई आर रिवर्स करंट। वी एफ फॉरवर्ड वोल्टेज, वी आर रिवर्स वोल्टेज, वी आर रिवर्स वोल्टेज। अब देखिए करंट कहने का मतलब क्या है, जब 0.3 और 0.7 जैसे ही क्रॉस किया, 0.3 और 0.7 ये क्या है, बैरियर पोटेंशियल। क्या है? जैसे ही क्रॉस किया वैसा करंट बढ़ा। अब मैं बात करता हूँ रिवर्स में। क्या? यहाँ पे देखिए, ये वोल्टेज है, ये क्या है, वोल्टेज। क्या है? जैसा जैसा वोल्टेज बढ़ रहा है करंट बढ़ रहा है क्या? नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा। वोल्टेज क्या हो जाएगा? लेकिन करंट बढ़ेगा। क्या होगा? करंट बढ़ेगा। अब यही प्रॉपर्टी की वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से जनरल डायोड का रेगुलेटेड पावर सप्लाई में यूज होता है। किसमें यूज होता है? क्योंकि मेरे पास वोल्टेज जो भी आ रहा है, इनपुट एसी जो भी वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट के बाद करंट सडनली बढ़ रहा है। जैसा रेगुलेटेड पावर, यहाँ पे जो मेरा सर्किट है, इस सर्किट में क्या है, वोल्टेज जितना आ रहा है, लेकिन मैं इस फैन का स्पीड बढ़ा सकता हूँ। अरे फैन का स्पीड बढ़ा सकता हूँ ना, वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन करंट क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जनरल डायोड। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जनरल डायोड। आर यू वेटिंग? यहाँ पे देखो, वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, रिवर्स हो रहा है, वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, ये करंट बढ़ रहा है क्या? लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये जो VZ है, ये जनरल डायोड वोल्टेज है। क्या है? जनरल डायोड वोल्टेज। जनरल डायोड वोल्टेज क्या हो गया? कांस्टेंट। करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। करंट क्या हो रहा है? कौन सा करंट? रिवर्स करंट। कौन सा करंट? रिवर्स करंट बढ़ते जा रहा है। कांस्टेंट जनरल वोल्टेज, कांस्टेंट जनरल वोल्टेज, एंड करंट इज द मैक्सिमम। करंट इज द मैक्सिमम। आर यू गेटिंग दिस वन? Are you getting, my dear? As can be seen from the characteristics, the general diode behave like a normal diode with the forward bias. Simple में है, जनरल डायोड फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल डायोड का जैसा काम करेगा, लेकिन रिवर्स बायस में जनरल डायोड, क्योंकि जनरल डायोड बनाया ही गया इसलिए है, इट इज स्पेशली फैब्रिकेटिंग वर्किंग इन अ रिवर्स बायस, वर्किंग इन अ रिवर्स बायस. As can be seen from the characteristics, a general diode behave like a normal diode when forward bias. When the reverse bias shows the breakdown, this breakdown discussed previously occurs at the voltage called the general voltage. Breakdown voltage को general voltage भी बोलते हैं. Breakdown voltage को क्या बोलते हैं? General voltage. The current suddenly increase if the applied voltage is increased beyond the general voltage. It is interesting to note that voltage remain constant at VJ for the increase in the current once the general breakdown occurs. एक बार general breakdown occur हो गया तो क्या होगा? This property of the general diode is used in the voltage regulator. यही प्रॉपर्टी की वजह से, यही प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, मैं वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूँ, एक समय ऐसा आएगा कि वोल्टेज कांस्टेंट होगा. वोल्टेज क्या होगा? करंट क्या होगा? बढ़ेगा. उस वोल्टेज को बोलते हैं जनरल वोल्टेज. क्या बोलते हैं? उस करंट को बोलेंगे जनरल करंट, रिवर्स करंट. समझ में आया क्या? हाँ. और यही प्रॉपर्टी की वजह से रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूज होता है. क्या होता है? रेगुलेटेड. कहने का मतलब क्या है? वोल्टेज उसका बढ़ते जाएगा, वोल्टेज बढ़ेगा, एक समय ऐसा आएगा कि वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा. वोल्टेज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. लेकिन करंट क्या होगा? बढ़ेगा. बराबर. अरे बाबा, ये सर्किट में जहां वोल्टेज जो आ रहा है एक लिमिट तक आ रहा है ना, लेकिन फिर भी तो स्पीड बढ़ा है ना. स्पीड बढ़ाया मतलब क्या हुआ? करंट बढ़ा. वोल्टेज तो कांस्टेंट है, लेकिन करंट क्या हो रहा है? कम ज्यादा हो रहा है. क्या हो रहा है? मेरे को स्पीड कम करना है, वोल्टेज तो उतना ही है, स्पीड क्या हो रहा है? करंट कम किया. क्या किया? करंट कम ज्यादा हो रहा है. क्या हो रहा है? वोल्टेज क्या हो रहा है? कांस्टेंट. क्या है? कांस्टेंट. Amount of doping. Okay, the property of the general diode is used in the voltage regulator. The general voltage VJ depend upon the amount of doping. Doping का मतलब क्या होता है? The process of adding the impurity into the semiconductor to improve the conductivity.
to improve the conductivity. For a heavily doped diode, the depletion layer is thin and the breakdown occurs at lower reverse voltage. Depletion layer क्या होगा? thin होगा. क्या होगा? thin. Depletion layer thin हो जाएगा और reverse breakdown voltage होगा. The Zener diode with breakdown voltage of the less than 6 volt operate mainly at a Zener breakdown region. Those with the voltage greater than 6 volt operate mainly in a avalanche breakdown region. Not discussed here, but both are called a Zener diode. चाहे एवलेंसी हो या जेनर हो, उसी को क्या बोलेंगे? जेनर डायोड. क्या बोलेंगे? जेनर डायोड. जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया क्यों यूज करते हैं जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. करंट को कम ज्यादा करने. क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट होता है. वोल्टेज क्या होता है? रिवर्स करंट बढ़ते जाता है. समझ में आएगा? When a Zener diode operated in the breakdown region, voltage across it remain constant. This is important. ओकरे वोल्टेज जो है रिवर्स बायस में वोल्टेज क्या है? कांस्टेंट है. क्या है? क्या बढ़ रहा है? करंट. क्या बढ़ रहा है? इसके वजह से उसको हम क्या बोलेंगे? जेनर डायोड वर्किंग एज अ या जेनर डायोड यूज एज अ regulated power supply. Maybe in the examination ask you why Zener diode used as a regulated power supply. Main reason is that voltage remain constant, current is increasing. Voltage regulator maintain a constant voltage across the load regardless of the variation in the applied input voltage and the variation in the load current. Shows the typical circuit diagram of the voltage regulator using the Zener diode. कहने का मतलब क्या है? ये अनरेगुलेटेड इनपुट है. क्या है? अनरेगुलेटेड. यहाँ पे मैंने क्या लगाया? रेजिस्टेंस लगाया. ये कौन सा डायोड है बताओ? Zener diode. कौन सा है? और ये क्या है? लोड रेजिस्टेंस. क्या है? लोड रेजिस्टेंस. लोड रेजिस्टेंस से क्या होता है? आउटपुट होता है. और ये क्या है? इनपुट. क्या है? इनपुट. समझ में आया क्या? तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए ये Vs है, ये मिली एम्पियर में करंट है, ये यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे मिली एम्पियर में. तो कहने का मतलब क्या है? ये जो जेनर डायोड है कि जेनर डायोड का जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा? एक पर्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ेगा. पर्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ेगा. और एक समय ऐसा आएगा कि वोल्टेज क्या हो जाएगा? और करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. इसीलिए रेगुलेटेड जेनर डायोड यूज्ड एज अ रेगुलेटेड पावर. आर यू गेटिंग दिस वन? आर यू गेटिंग? This question may be asked you. हाँ? समझ में आया? समझ में आया क्या?